Thank you so much, Kamal Agarwal ji, for joining us, for sparing your time. And we welcome all the participants in the session. So today's session is with regard to general principles on GST audit assessments and investigation. We have done a session yesterday also with the respected Nandaji, and he also told us that in GST the next thing would be litigation and not compliance. So what a right time to have Kamal Agarwal ji on board and to hear his views, especially with regard to litigation. So Kamal Agarwal is a chartered accountant who qualified in 1901. He has been practice, so he's a specialist in indirect taxes. He has worked in FTAs, international tax agreements, custom duty, excise duty, service tax, VAT, and now GST. Kamal Agarwal has worked with all the big fours, whether it's PwC, Deloitte, KPMG, EY, and he has advised numerous corporates in transition to helping them transition to GST. He has also advised on ERP framework and especially under GST to numerous companies. Kamalji has been part of Indirect Tax Committee of ICAI and he has also been a faculty member of Certificate Course of Indirect Taxes. He has been a regular speaker on indirect taxes, whether it's excise, VAT, customs, on various platforms including NIRC, ICAI. He has traveled across the country. He has also represented at various appellate forums including CSTAT. We are very sure once the GST tribunals are there, sir will be representing there also. Kamalji, we welcome you, very heartily welcome you, and thank you so much for giving us your time. Now, the platform is all yours, sir. Thanks, Rajat. It's really a pleasure to talk about or sharing knowledge, and through this mode, kind of opportunity for us to sitting at home, learning and sharing knowledge without wasting a lot of time in travel and all that stuff. So, for last 2 years, I think the way webinars have started working. We are able to share knowledge with the people far across, or rather entire length and breadth of the country. So I have addressed webinars from organized by kind of branches or associations from the places I haven't even heard of. So they were down south, they were in various parts of the country, and it is really a learning experience for me as well. नंदा जी ने जो बोला बिल्कुल सही है. जीएसटी में लिटिगेशन नेक्स्ट थिंग नहीं है, ये अभी है, अभी भी है. इफ यू सी द अमाउंट ऑफ रिट पिटिशंस जो अभी भी जीएसटी में शुरू हो गई हैं, इतनी रिट पिटिशंस शायद सर्विस टैक्स में कुल मिला के नहीं हुई थी. अभी भी बहुत सारी रिट पिटिशन शुरू हो गई थी. जैसे ही ट्रांसवन शुरू हुआ था, ट्रांसवन की टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, उसके ऊपर रिट पिटिशन शुरू हो गई. उसके बाद बहुत सारे जीएसटी में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर रिट पिटिशंस हुई हैं. और रिट पिटिशन की एक बड़ी वजह ये भी है कि जीएसटी में एक और आर्म जुड़ गई है जो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए था जिसको, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी रिट पिटिशंस हैं. अब कानून ये बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज फाइल करनी है, जीएसटीएन के ऊपर हमने फाइल करनी है, लेकिन जीएसटीएन में आप फाइल नहीं कर पा रहे फॉर एनी टेक्निकल रीजन. तो आप क्या करेंगे? देन यू हैव नो चॉइस बट टू प्रोबेबली गो फॉर ए रिट पिटिशन. लेकिन क्या हर आदमी रिट पिटिशन में जा सकता है? नहीं जा सकता है. कभी अमाउंट कम होता है, कभी आदमी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है. हर एक आदमी रिट पिटिशन नहीं जा सकता. So then all these things apart from interpretation of law, अभी वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है कि जहां पर डिपार्टमेंट ऑडिट करके असेसमेंट करके हमारी डिमांड रेज करेगा, शोकोज नोटिस इशू करेगा, उसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर झगड़ा करेंगे, वैल्यूएशन पर झगड़ा करेंगे, या हम इस बात पे झगड़ा करेंगे कि ये लोकल सप्लाई थी या इंटर स्टेट सप्लाई थी, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई. वो सब चीजें तो अभी आई नहीं है. अभी तो बहुत सारी लिटिगेशन जो हो रही है वो सिर्फ इस पे हो रही है कि मेरे 2B में नहीं आ रहा है, मेरे 2A में नहीं आ रहा है, मेरे GSTR 1 और 3B में मिसमैच है, और उस वेंडर फेक है. मैं कहता हूँ मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है गुड्स रिसीव करने के. मैं टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से ट्रांसवन नहीं डाला, ट्रांसवन का क्रेडिट मेरे क्रेडिट लेजर में नहीं आ रहा था तो मुझे कैश में देना पड़ा.
अब मेरे पास क्रेडिट सरप्लस है, मेरा कैश वापस होना चाहिए। बहुत सारी लिटिगेशन ऐसी है जो शायद हम लोगों ने भी जीएसटी आने के वक्त नहीं सोची थी। हमने ये जरूर सोचा था, नया कानून है, सप्लाई एक नई डेफिनेशन है, सप्लाई के ऊपर इशू आएंगे। वैल्यूएशन एक नया प्रोविजन है जो एक्साइज से, सर्विस टैक्स से, वैट से सबसे अलग है, उसके ऊपर इशू आएंगे। और कस्टम में वैल्यूएशन के प्रिंसिपल मोरलेस वही हैं जो जीएसटी में है, तो हम कस्टम के केस लॉज को लाके यहां पर डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई के इशू आएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के इशू आएंगे, उस तरह की चीजों के ऊपर लिटिगेशन होगी। प्रोबेबली 2-3 साल हमें आराम से मिलेंगे, उसके बाद लिटिगेशन शुरू होगी। जब असेसमेंट शुरू होगी, ऑडिट शुरू होंगे, तब वो शुरू होगी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी जबरदस्त लिटिगेशन शुरू होगी, जो कि बिना कहे कि लॉ में जाए हुए टेक्निकल रीजंस की वजह से लिटिगेशन है, जो डिपार्टमेंट के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जीएसटीएन से डिफरेंट रिपोर्ट्स निकलती हैं, वो आपस में रिकंसाइल नहीं करती हैं, उसकी वजह से लिटिगेशन है। और बहुत सारी लिटिगेशन हम प्रोफेशनल्स ने खुद से एज्यूम कर ली। वो कौन सी साहब? बहुत सारी एडवांस रूलिंग। हमने एडवांस रूलिंग को ऐसा समझ लिया कि ये ब्रह्मा जी आ गए हैं और ब्रह्मा जी बैठ के हमारे सारे सवालों के बिल्कुल ट्रू जवाब दे देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप सीधे उनके पास चले जाइए। और हम ये भूल गए कि जो एडवांस रूलिंग है उसमें 2 एडिशनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर बैठे हैं, एक स्टेट का और एक सेंटर का। और वो जो लोग बैठे हैं उनको 2-3 साल जो एडवांस रूलिंग का टेन्योर है उसको पार करके फिर से उसी कमिश्नर के अंडर काम करना है जिस कमिश्नर के अगेंस्ट वो एडवांस रूलिंग देना चाह रहे हैं। तो किस तरह की एडवांस रूलिंग देंगे वो हमें पता लग रहा है। डिफरेंट स्टेट्स की एडवांस रूलिंग आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं, ये हमें मालूम पड़ रहा है। पहले एडवांस रूलिंग के प्रोविजंस थे, इनकम टैक्स में थे, सर्विस टैक्स में थे, एक्साइज में थे। एक बड़ा लंबा पीरियड जस्टिस कादरी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्होंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को चेयर किया। तो एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को चेयर किया करता था, और एक जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर उसके पार्ट होते थे। वो एक अथॉरिटी थी जो केसेस को प्रॉपरली हियर करके जवाब देती। उसके मुकाबले हमारे पास आज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है जिसमें 2 एडिशनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। और बहुत सारी लिटिगेशन एडवांस रूलिंग की जो हुई, मैं समझता हूं हम लोग बहुत सारे सेटल्ड प्रिंसिपल्स थे उनको लेके भी चले गए और हमने खुद से वो लिटिगेशन शुरू कर दी। लेकिन चलिए, जो अभी तक हुई वो हुई। आने वाले दिनों में जो लिटिगेशन होने वाली है वो उन टॉपिक से निकलेगी जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं जीएसटी ऑडिट, असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन। सो इनमें पर से लिटिगेशन नहीं है, पर से लिटिगेशन इसमें हो सकती है, लेकिन लिटिगेशन इनसे रिजल्ट करेगी। तो इनको समझना जरूरी है क्योंकि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर हम ना समझे तो बहुत सारी लिटिगेशन और बढ़ जाती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं शोकोस के बाद। शोकोस के बाद जब लोग आते हैं, शोकोस दिखाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये बहुत सारी चीजें थी जो आप ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द असेसमेंट, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आप उनको बता सकते थे। ये चीजें आप अगर उसी वक्त आप उनको एक्सप्लेन कर देते तो शायद ये पॉइंट शोकोस में नहीं आता। लेकिन लोग उन प्रोसीडिंग्स को शायद उतनी अहमियत नहीं देते जितनी शोकोस नोटिस के बाद की प्रोसीडिंग को अहमियत देते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि असली अटेंशन, असली ध्यान आपको इन प्रोसीडिंग में देना है। शोकोस के बाद भी देना है, लेकिन शोकोस के बाद, और मैं रजत भाई से कहूंगा कि शोकोस और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स है, शोकोस हम कहेंगे एक एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है, शोकोस होता है, उसका एडजुडिकेशन होता है और फिर अपील होता है। वो भी आप ऑर्गेनाइज करिए, एडजुडिकेशन को करिए, अपीलेट को करिए, ताकि उस प्रोसेस को भी लोग समझ सके कि जो चीज मुझे कल अपीलेट लेवल पर कहनी है उसके लिए ग्राउंड वर्क आज ऑडिट में तैयार होना जरूरी है, उसके लिए ग्राउंड वर्क आज इन्वेस्टिगेशन में तैयार होना जरूरी है, उसके लिए ग्राउंड वर्क असेसमेंट में तैयार होना जरूरी है। तो ऑडिट, असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि आज हो गई, खत्म हो गया इनका रोल।
ये तो बीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे तो आम कहां से पाएंगे? ये तो पुरानी कहावत हम सब लोगों ने सुनी हुई है। तो ये बड़ी जरूरी है कि हम ग्राउंड वर्क से उस तरह से तैयार करें, उस तरह से अपनी तैयारी करें कि हमें बाद में इस चीज की दिक्कत ना आए। अब चलते हैं, अगर अब ऑडिट की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के ऑडिट हम लोग बात करते हैं जीएसटी में, और एक ऑडिट को मैं ऑडिट नहीं मानता हूं, लेकिन चलिए हम सब लोग ऑडिट बोलते हैं उसको। तो 3 ऑडिट है। एक ऑडिट जो था, जो अभी खत्म हो गया इस साल से, जो ऑडिट हम लोग करते थे, प्रोफेशनल करते थे। उसके अलावा एक ऑडिट है टैक्स अथॉरिटीज जो करती हैं, जो हम देखते रहे हैं। सर्विस टैक्स में ऑडिट होते थे जिससे हम ज्यादा वाकिफ हो गए। वैसे ऑडिट ये एक्साइज के वक्त में भी होता था, बट मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में आए सर्विस टैक्स के समय में, तो सर्विस टैक्स के ऑडिट से ज्यादा वाकिफ है। तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर जीएसटी is more or less or rather quite similar to audit which was being done by service tax authorities. तो ऑलमोस्ट उसी तरह के प्रोसीडिंग्स है। और एक ऑडिट है स्पेशल ऑडिट, जो स्पेशल ऑडिट कोई कमिश्नर उसको ऑर्डर कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स में भी है, इनकम टैक्स में भी एक स्पेशल ऑडिट वो लोग पैनल बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसको ऑडिट अलॉट करते हैं। ऐसे ही सर्विस टैक्स में भी स्पेशल ऑडिट अलॉट हुए थे। शुरू में गौतम भट्टाचार्य जी कमिश्नर थे, उन्होंने 17 फर्म्स की एक लिस्ट बनाई थी ऑडिट करने के लिए। इंसिडेंटली वी वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट फर्म। तो एक ऑडिट वो होता है। तो 3 ऑडिट तरह के ऑडिट है, और एक हम 1 by 1 अगर इसको लें। लेकिन ऑडिट अब जीएसटी एक्ट में पर से डिफाइन किया हुआ है। तो जो ऑडिट है उन्होंने डिफाइन किया है कि दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स and other documents. So they look at your returns, they look at your records, they look at your other documents. What they want to do, they want to see whether your transactions have been correctly declared. That means your turnover is correctly declared, you have correctly paid the taxes, your refund amount which has been claimed is correct, your input tax credit which has been claimed is correct, and you have complied with the law. तो द ऑडिट की डेफिनेशन है which has been under section 2 subsection 13 of the GST Act. It says audit is examination of records, documents and other information, your returns, to see whether your turnover is correct, your taxes are paid as correct, you have claimed correct refund, you have claimed correct input tax credit, and you are complying with other provisions of the law. So that is the objective of the audit. If you look at, इसके अलावा जीएसटी में कुछ बचता नहीं है। आपका टर्नओवर देख लिया उसने, आपके टैक्सेस की पेमेंट देख ली, आपकी आईटीसी देख लिया, आपका रिफंड देख लिया, और आपका कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ द लॉ देख लिया। तो मोर और लेस ऑडिट इज एन एक्सरसाइज विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। अगर हम देखें आज अभी टॉपिक कवर करेंगे हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के ऊपर एक आपको चिट्ठी आ जाती है कि आपका जो जीएसटीआर 1 में टैक्स है या टर्नओवर है वो 3B से टैली नहीं हो रहा है, आपके 3B आपके 2A से टैली नहीं हो रही है। तो दैट इज ए वेरी स्पेसिफिक क्वेरी विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, टू द पॉइंट। बट व्हाट आई एम सेइंग, ऑडिट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका बेनिफिट आपको कहां मिलता है? जब आपको सेक्शन 74 में कोई नोटिस आएगा, जो आप मे बी रजत भाई ऑर्गेनाइज करेंगे सेकंड सेशन उसके ऊपर। जब आपको नोटिस आता है, आपको सप्रेशन डिपार्टमेंट अलेज करता है, वो आपको 74 में नोटिस देता है, जहां लिमिटेशन पीरियड 5 साल का है, जहां पेनल्टी लगाना मैंडेटरी है, और आप ये कहते हो जी मेरा तो ऑडिट हो चुका है, और क्योंकि मेरा ऑडिट हो चुका है, डिपार्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार मेरी सारी बुक्स को एग्जामिन कर चुका है, तो अब आप मेरे ऊपर सप्रेशन नहीं लगा सकते। और ये चीज सेस्टेट में हम लोग बहुत सालों से सक्सेसफुली आर्गू करते आ रहे हैं। जहां पर ऑडिट होता है, सेस्टेट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है उसको उठा के बाहर फेंक देता है। तो एक आपके ने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन को हैंडल किया, और एक आपने ऑडिट को किया। उन दोनों के जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस में, उसमें बहुत फर्क है। तो ये चीज हमें बड़ी ध्यान रखनी है। अगर हम ऑडिट की बात करें, जो हमारा एनुअल रिटर्न फाइल किया करते थे,
तो जिसके लिए सेक्शन 35(5) में ऑडिट था, सेक्शन 44 की हम बात कर रहे थे, रूल 80 की बात कर रहे थे, तो क्या वो ऑडिट था? सेक्शन 35 कहता था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करेगा ऑफ द एसएससी हु हैज एक्सीडेड दैट टर्नओवर, जो 2 करोड़ था फिर 5 करोड़ हो गया, वो सब हो गया। लेकिन ऑडिट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। तो आप लोगों में से किसने ऑडिट रिपोर्ट दी भाई? मैंने तो कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी। बहुत सारे मैंने जीएसटी ऑडिट किए, मेरी टीम ने किए 35(5) में, 44 में, पर हमने कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी। हमने क्या दिया? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो अगर पार्ट 2 का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देखें तो वहां पर हमने ट्रू एंड करेक्ट जो बोला, हमने कहा ट्रू एंड करेक्ट, रिकंसिलेशन ट्रू एंड करेक्ट है, ऑडिट के बारे में नहीं कहा हमने ये नहीं कहा कि उसकी टैक्स लायबिलिटी ट्रू एंड करेक्ट है, ये हमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो मैं कहूंगा वो ऑडिट भी नहीं था, लेकिन क्योंकि अब वो चैप्टर ही क्लोज हो गया तो उसके ऊपर ज्यादा बात करने का लाभ नहीं है। हम अब आगे आते हैं, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो टैक्स अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा, सर्विस टैक्स में हम ये ऑडिट को डिस्कस करते रहे हैं, एड्रेस करते रहे हैं। इसमें सिमिलर प्रोविजन है। तो ऑडिट के विंग्स अलग है सेंटर में। स्टेट वालों के लिए अभी ऑडिट का ये नया कॉन्सेप्ट है। और मैं अपने प्रोफेशनल कुलीग से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट को एडवाइस करें, ये हमेशा ध्यान में रखें कि वो स्टेट की जुरिडिक्शन में है या सेंटर की जुरिडिक्शन में है। जिन लोगों ने सर्विस टैक्स और वैट दोनों प्रैक्टिसेस की है, वो जानते होंगे कि सर्विस टैक्स अथॉरिटीज बहुत अलग ढंग से काम करती थी और वैट की अथॉरिटीज बड़े अलग ढंग से काम करती थी। सर्विस टैक्स वाले ऑडिट आपके प्रमाइसेस पे जाके करते थे, वैट वाले तो कभी अपने दफ्तर के बाहर नहीं निकले। किसी वक्त में जब मैं वैट में डिपार्टमेंट में जाता था तो एक एक दिन में 7-7, 8-8 असेसमेंट्स खत्म हो जाती थी। हमारे और बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं, वो सुबह से शाम तक 20-20 असेसमेंट्स खत्म कराते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट से एक सर्विस टैक्स ऑडिट कराने में कई महीने लग जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका एसएससी, आपका क्लाइंट सेंटर के अंडर है या स्टेट के अंडर है, क्योंकि उन दोनों अथॉरिटीज की अप्रोच अलग है और इसलिए आपकी उस डिपार्टमेंट से डील करने की अप्रोच भी अलग होगी और आपकी तैयारी भी अलग होगी। अगर आप ये चीज ध्यान रखेंगे तो आप क्लाइंट्स के लिए अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। अब यहां पर क्या प्रोविजन है कि कमिश्नर एक स्पेसिफिक ऑर्डर है या जनरल ऑर्डर है, उसके अंडर ऑडिट अलॉट कर सकता है। जनरली क्या प्रैक्टिस होती है, जो कमिश्नर्स ऑडिट है वो ऑडिट की क्लाइंट्स को पिकअप करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन पैरामीटर्स। उनके पैरामीटर हैं, जिस आदमी ने 1% से कम कैश पे पे किया है उसको पहले ऑडिट के लिए उठा लिया जाता है। किसी का आईटीसी अगर इंडस्ट्री से बाहर ज्यादा कम है, ज्यादा है, वेरिएशन है, तो उस तरह के पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे वो असेसीज को पिक करते हैं और फिर ऑडिट के उनके ग्रुप्स हैं, उन ऑडिट को वो अलॉट कर दिया जाता है। लॉ ये बोलता है, दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 65, ऑडिट आपके प्रमाइसेस पे भी हो सकता है और जीएसटी का ऑडिट जीएसटी डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ये दोनों चीजें उसमें स्पेसिफिकली अलाउड है। इसमें आपको 15 दिन का नोटिस देना उनके लिए मैंडेटरी है। तो 15 दिन का वो नोटिस देंगे, उसके साथ आपको लिस्ट देंगे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देने के बाद वो आपको कहेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए। डिपार्टमेंट एक डेस्क रिव्यू करता है पहले आपके डिपार्टमेंट के बेस पर, और वो डेस्क रिव्यू इंटरनली डिस्कस होता है, वो उनके सीनियर ऑफिसर से अप्रूव होता है और उसके बाद जब वो ऑडिट करने फिजिकली आते हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क बना होता है। वो उस इंडस्ट्री के डिफरेंट जिन्होंने ऑडिट किया उन लोगों से बात करके आते हैं, तो वो तैयार होते हैं काफी हद तक कि हमें इस क्लाइंट क्या 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 मिलने वाला है। आपको वो इंटीमेट नहीं करेंगे, आपको मालूम भी हो सकता है कभी पड़ जाए कभी ना पड़ जाए, लेकिन वो बड़े स्पेसिफिकली बड़े प्यार से आपसे वो चीजें पूछेंगे जिसके बारे में उनको उम्मीद है कि यहां कुछ मिलने वाला। तो ऑडिट में आप ये मत समझिए कि जब डिपार्टमेंट आ रहा है तो उसको कैसे पता लगेगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट, आप एक एसएससी जैसे करते हैं, आप एक इंडस्ट्री के 10 एसएससी करते हैं, डिपार्टमेंट भी
वो एक सुप्रियंट रियल एस्टेट के 10 क्लाइंट को करके आ रहा है, तो उसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसको भी मालूम है, तो वो 10 इंडस्ट्री को कर भी आ रहा है। और ये भी है कि उसने 2 4 5 बिल्डरों के यहाँ अपने पैसे भी लगा रखे हैं, तो उसको उधर से भी पता रहता है। तो वो तैयारी करके आता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको सब कुछ ही पता लग जाता है। तो ये दोनों बातें, तो हमें क्या करना है डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट की सारी प्रोसीडिंग्स में, चाहे हम ऑडिट की बात करें, चाहे हम असेसमेंट की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें। और टॉपिक जो आज का है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, इसलिए लॉ तो हम सब लोग क्वालिफाइड हैं, लॉ तो हम पढ़ ही लेंगे। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा कि डिपार्टमेंट को अभी कभी ऐसा लगा कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। डिपार्टमेंट के पास बेतहाशा अनलिमिटेड पावर है। किसी भी वक्त एक ऑडिट इंस्पेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी वक्त एक ऑडिट सर्च में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको अगर कुछ छुपाना भी है तो ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ छुपा रहे हैं। डिपार्टमेंट जो मांग रहा है वो आप उसको देते रहिए, मे बी इन योर ओन विजडम। आप आगे बढ़ के उनको कुछ ना बताना चाहें, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, बट यू शुड नॉट नेवर बी सीन एज हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल जरूरी है जो डिपार्टमेंट ने कहा। और बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट के पास होती हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको अपने सिस्टम से निकालने में समय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो हम नहीं देंगे तो वो हमारी बैलेंस शीट नहीं निकाल सकते। आज डिपार्टमेंट बड़ा टेक्निकली सेवी है, वो आपकी कंपनी की हिस्ट्री, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स है, और कौन कौन सी कंपनी से डायरेक्टर्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, आरओसी की साइट पे है और बहुत सारी साइट्स पे, वो वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के रेडी रहता है। तो आपको डिपार्टमेंट से छुपाने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, आपने आज सामने बढ़ के कुछ नहीं बताना है, दैट इज समथिंग विच यू शुड डिसाइड। तो ऑडिट आपको नोटिस आएगा पहले एडीटी 1 में, और मैं इन फॉर्म में ज्यादा नहीं जाऊंगा। 15 दिन का आपको नोटिस आएगा, 15 दिन में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट खत्म करना है। अब 3 महीने के अंदर जो ऑडिट खत्म करना है उसकी डेट क्या है? 3 महीने कहां से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं जिस दिन आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट ने मांगी है वो दे देते हैं। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो कभी दी नहीं जाती है, हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद वो कुछ और मांगते हैं, फिर वो कुछ और मांगते हैं, फिर वो कुछ और मांगते हैं। तो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन तो मांगता रहता है। तो मैं समझता हूँ, हालांकि ये टाइम लिमिट लॉ में लिखी गई है, 3 महीने की टाइम लिमिट है, जिसको कमिश्नर 6 महीने तक ले जा सकता है। इसका फायदा कहां आ सकता है? या उसने कहा 3 महीने और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट योर प्रोमाइसेस व्हिचएवर इज लेटर। तो जब डिपार्टमेंट ने आखिरी चिट्ठी इंफॉर्मेशन की मांगी, उसके बाद डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं मांगा, और उसके बाद उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी मुझे 8 महीने बाद, तो मैं कह सकता हूं सर सॉरी, आपने 6 महीने पहले चिट्ठी मांगी थी, आपने वो लास्ट इंफॉर्मेशन मांगी थी, उससे मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी, उसके बाद से आज तक आपने कुछ नहीं मांगा। 6 महीने का पीरियड था, 3 महीने का आपके पास पीरियड था, जो कि कमिश्नर 3 महीने और एक्सटेंड कर सकता था। अब 6 महीने हो गए, अब मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। आई कैन टेक द स्टैंड लीगली। तो यहां पर आपके पास एक विंडो है, पर डिपार्टमेंट से डील करना इज ए स्ट्रेटेजिकल कॉल। क्योंकि डिपार्टमेंट का अगर ठीक है साहब आप ऑडिट में नहीं देते, कोई बात नहीं, मैं एंटीविजन टीम में फाइल रेफर कर देता हूं आपकी। एंटीविजन वाली टीम आपके इंस्पेक्शन पे आ जाएगी या सर्च पे आ जाएगी। आपका क्लाइंट कहेगा भाई ये तो फिर भी 2-3 महीने से उनसे डील कर रहे थे, थोड़ी दोस्ती हो गई थी, तुमने तो सर्च करा दी मेरे। तो वन हैज टू स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कि कहां पर हमें डिपार्टमेंट से लड़ना है और कहां हमने उनको, अगर मुझे बहुत हार्म नहीं होना, अपने इंटरेस्ट, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए उनको हमने कोऑपरेट करना। तो ये हमें एक स्ट्रेटेजिकल देखना पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक ही है भाई, सर्च भी वही करते हैं, डीजीसीआई भी वही है, एंटीविजन भी वही है और ऑडिट भी वही करते हैं।
और ये सब लोग एक दूसरे में घूमते रहते हैं। तो इनके लिए बड़ा इजी है कि उठा के डीजीसीआई में किसी को फोन करना, भाई साहब मैं एक फाइल भिजवा रहा हूं आपके पास, जरा उसको देख लेना। तो दिस इज वेरी इजी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें किस स्टेज पर क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। सेक्शन 71 पावर देता है इनको समन करने की, इंस्पेक्शन करने की, एंटर इनटू प्रोमाइसेस की। वो ऑडिट में भी सपोर्ट करता है प्रोविजन, और वो ये आपको रिक्वायर करता है कि ऑडिट के दौरान यू आर लीगली बाउंड टू गिव देम ऑल रिकॉर्ड्स, योर ट्रायल बैलेंस, इनकम टैक्स की रिपोर्ट, 3CD, all those documents you are required to provide to audit team whenever it has been asked. तो आप ये नहीं कह सकते ऑडिट टीम को कि भाई 3CD से आपका क्या मतलब है। आप उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपकी है, जो आपकी टीपी रिपोर्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि इससे तेरा मतलब क्या है। आप प्यार मोहब्बत से कहते हो सर क्या करोगे, वो अलग बात है, बट लीगली यू कैन नॉट से दैट यू हैव नो राइट टू आस्क मी दीज थिंग्स। सो these things are provided in the law, आपको ये चीजें उनको अवेलेबल करानी पड़ेंगी। इसके साथ एक और चीज जानना जरूरी है कि पहले जो प्रोविजन थे एक्साइज में और सर्विस टैक्स में, वहां पर जो सप्रेशन के प्रोविजन थे, वहां पर था विलफुल सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा कि विलफुल सप्रेशन मीन्स some positive act of suppression, mere inaction कि आपने कोई चीज देनी थी उसने दी नहीं, तो आपने कोई चीज उससे मांगी उसने नहीं दी, तो ये सप्रेशन नहीं है, सप्रेशन है उसने छुपाया इज ए पॉजिटिव एक्ट, उसने कुछ किया जिससे वो छुपी। आपने कोई मांगी उसने नहीं दी, ये छुपाया नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट है। अब जो 74 में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनीथिंग टू द डिपार्टमेंट अंडर ए रिटर्न और व्हेन आस्क्ड बाय डिपार्टमेंट, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड दैट वुड अमाउंट टू सप्रेशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर के प्रिंसिपल्स डिटरमाइन किए थे, 90% केसेस इस एक्सप्लेनेशन से की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो पहले जो पॉजिटिव एक्ट था वो प्रिंसिपल खत्म हो गया। तो अगर ऑडिट के दौरान आप कोई चीज उसने मांगी और आपने नहीं दी, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर सप्रेशन लगा के आपको 74 में शोकॉज नोटिस दे सकता है और आपका पीरियड 5 साल का ले जा सकता है, जबकि आपने सब कुछ चीज डिस्क्लोज कर दी। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मांगे वो आप प्रोवाइड कराएं। इसकी एक और चीज है जो खास तौर पे ऑडिट के वक्त ध्यान देने वाली है। ऑडिट में होता क्या है कि वो आके बैठ जाते हैं आपके यहाँ, 3 दिन 4 दिन वो आपके बैठे रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं, हम देते रहते हैं। उनको एक अच्छे से कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा देते हैं, चाय पानी के लिए एक लड़का रख देते हैं, वो उनको चाय पानी समोसे सब खिलाता रहता है। वो इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं, हम देते रहते हैं, बिकॉज इन गुड फेथ वी डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। लेकिन जब ऑडिट पूरा हो जाता है, उसके बाद मेरे से कोई पूछे या कोई CFO आपसे पूछे कि सर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दी, आपके पास कोई रिसीविंग है? सर रिसीविंग तो नहीं है, वो तो बैठे थे, हम देते रहे, हम देते रहे, वो लेते गए। दैट इज वेरी 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 डैमेजिंग, क्योंकि आपने अपनी बोनाफाइडी जो है उसको प्रूव करने का सबसे बड़ा एविडेंस आपने कलेक्ट नहीं किया। हाथों हाथ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, हर चीज की रिसीविंग लेना जरूरी नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब भी ऑडिट होगा वो आपको बोलेगा सर जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए इनके ऊपर आप इनिशियल कर दीजिए। उस वक्त आप एक लिस्ट बनाइए ऑडिट टीम को कि सर हमने ये डॉक्यूमेंट्स आपको ड्यूरिंग दी ऑडिट प्रोवाइड कराए हैं, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में दिया है, ये डॉक्यूमेंट कॉपी में दिया है, काइंडली इनकी रिसीविंग मुझे दे दीजिए। वो एक रिसीविंग आपकी बहुत मदद करेगी। वो आपकी मदद करेगी कि आपका सारा एक्शन बोनाफाइडी था। आपके ऊपर अगर 73 में आप जानते हैं 73 में अगर आपके पास शोकॉज नोटिस आता है और विद इन 30 डेज अगर आप उसका टैक्स जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। 73 में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है जिसका क्रेडिट आपका कस्टमर क्लाइंट ले सकता है, अगर वो 16/4 का टाइम है, तो 74 में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट आपका क्लाइंट नहीं ले सकता, आपका कस्टमर, सॉरी।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमें ध्यान रखनी है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ध्यान नहीं रखी गई, ऑडिट में ध्यान नहीं रखी गई और शोकॉज के बाद आप कुछ नहीं कर सकते इससे। तो इसलिए मैं कहता हूं जो ऑडिट प्रोसीडिंग है, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है प्रायर टू शोकॉज, दे आर रादर मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि शोकॉज आने के बाद आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि ये फैक्ट्स हैं, ये एलिगेशन है, ये टैक्स है, ये एलिगेशन है। डिपार्टमेंट उसके बाहर नहीं जा सकता। इस वक्त सब कुछ खुला हुआ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ऑडिट कंप्लीट होगा, एडीटी 1 से शुरू होता है, एडीटी 2 से खत्म होता है। डिपार्टमेंट आपको 30 डेज में ऑडिट कंक्लूड होने के बाद एक रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट का फॉलोअप करना बड़ा जरूरी है, वो रिपोर्ट आपकी फाइल में होनी जरूरी है। इस तरह से स्पेशल ऑडिट की बात करें, स्पेशल ऑडिट है जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी, अगर किसी की बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है और एनी ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट कमिश्नर, ही इज ऑफ द व्यू दैट ईदर वैल्यू डिक्लेयर इज नॉट करेक्ट और इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट। वो कह रहा है जी ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इसके अंदर तो 60% जनरली क्रेडिट रहता है, आपने 80% ले रखा है, या आपकी वैल्यू करेक्ट नहीं है। सिर्फ ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए वो स्पेशल ऑडिट को ऑर्डर कर सकता है। इन 2 चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए स्पेशल ऑडिट ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इट इज ओनली वैल्यू और इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपकी ट्रांजैक्शन स्टेट की थी, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई गलत था, आपका टाइम ऑफ सप्लाई गलत था, क्या उनके लिए हो सकता है? नहीं हो सकता। ओनली 2 पॉइंट्स, वैल्यूएशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिर्फ 2 चीजों के लिए स्पेशल ऑडिट हो सकता है। स्पेशल ऑडिट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, उसकी जो फीस वगैरह होगी वो कमिश्नर देगा, और उसकी रिपोर्ट को अगर डिपार्टमेंट यूज करना चाहता है तो वो डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट पहले आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर करेंगे, उसके बाद ही डिपार्टमेंट उस रिपोर्ट को यूज कर सकता है। तो ये स्पेशल ऑडिट था। स्पेशल ऑडिट को 90 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और 90 दिन फर्दर 90 दिन पीरियड में बढ़ाए जा सकते हैं। तो 3 मंथ प्लस 3 मंथ, इट कुड बी ए 6 मंथ असाइनमेंट। तो आज की डेट में 2 ऑडिट की हम बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट। डिपार्टमेंटल ऑडिट विल बी 99.5% ऑफ द ऑडिट्स। स्पेशल ऑडिट वुड हैपन इन वेरी वेरी रेयर केसेस। और अब खास तौर पे जब पैसे ही लिमिट जो इशू हैं वो 2 ही रह गए हैं, तो मैं समझता हूँ स्पेशल ऑडिट अब बहुत कम एलोकेट होंगे। पर्सनली मेरा स्पेशल ऑडिट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और इसलिए जब पहली लिस्ट में हम लोग आए उसके बाद हमने किसी भी स्पेशल ऑडिट के एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। इवन डिपार्टमेंट के कॉल्स को भी हमने फिर डिनाई किया पोलाइटली कि हम स्पेशल ऑडिट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एनीबडी हु वांट्स टू डू स्पेशल ऑडिट हु हैज अप्लाइड कैन स्पीक टू मी एंड आई कैन टेल हिम 1-to-1 व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी हैव फेस्ड। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द सीए फर्म्स जो स्पेशल ऑडिट में पैनल करने वाली हैं वो चैलेंजेस फेस करेंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं बदला, कानून बदल गया है पर डिपार्टमेंट नहीं बदला। तो अब आते हैं सर हम असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट में सर पहला असेसमेंट है मेरा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है दोस्तों? जीएसटी एक ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसमें हर ट्रांजैक्शन एक असेसमेंट है। ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है जहां पर असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट है। यहां आपने एक इनवॉइस रेज किया, जब आपने इनवॉइस रेज किया उस वक्त आपने असेस किया, सेल्फ असेस किया कि इस ट्रांजैक्शन की क्या वैल्यू है, ये मेरी सप्लाई की क्या वैल्यू है, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका रेट ऑफ टैक्स क्या है। आप सोचते नहीं है, नोइंगली नहीं, बट वी सेल्फ असेस ऑल दीज थिंग्स एंड इशू एंड इनवॉइस। जब मैसे ने एक इनवॉइस इशू किया, वेबिल बनाया, गुड्स को डिस्पैच किया, तो मैंने उस ट्रांजैक्शन की सेल्फ असेसमेंट पूरी कर ली। दैट इज सेल्फ असेसमेंट। आपकी 3B, आपकी GSTR 1 is aggregation of all self assessment done
इन दैट टैक्स पीरियड, और जिसके ऊपर टैक्स पे करना, सुओ मोटो टैक्स पे करना मेरी लायबिलिटी। तो आप हर ट्रांजैक्शन को सेल्फ असेस करते हैं, उसको टैक्स पीरियड की ट्रांजैक्शंस को टोटल करते हैं और उस टोटल को अपनी रिटर्नों में डिक्लेयर करते हैं और आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। इसलिए अगर डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 83 के अंदर कोई कोर्सिव मेजर लेता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने असेस नहीं किया, क्योंकि आपने पहले असेस कर चुके हैं, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर चुके हैं, और टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करने के बाद भी अगर आप पे नहीं कर रहे तो डिपार्टमेंट का रिकवरी प्रोसीडिंग इज वैलिड। डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट अगर बढ़ा रहा है, आपके असेसमेंट को चैलेंज कर रहा है और उसकी वजह से कोई लायबिलिटी निकल रही है, देन यू हैव से कि यू कैन ओनली डू प्रोविजनल अटैचमेंट, यू कैन नॉट अटैच मी फुली। आपको पहले ऑडिट या असेसमेंट मेरा करना पड़ेगा, या असेसमेंट करिए या शो कुछ करिए। तो सेल्फ असेसमेंट वी डू इट डेली। जब भी इनवॉइस बनता है सेल्फ असेस होता है विदाउट अस बीइंग रियलाइजिंग व्हाट इट इज। तो दैट इज सेल्फ असेसमेंट। अब आता है प्रोविजनल असेसमेंट। एक्चुअली प्रोविजनल असेसमेंट एक कॉन्सेप्ट आया है कस्टम से, जिसका जीएसटी में बहुत ज्यादा मायने नहीं है। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता था कस्टम में कि आपका गुड्स आ गए, गुड्स आने के बाद आपको लगा यार ये क्लासिफिकेशन श्योर नहीं हूं मैं, इसकी वैल्यूएशन के ऊपर श्योर नहीं हूं, कल को मैं कुछ डिक्लेयर कर दूंगा, अगर वो डिपार्टमेंट ने चैलेंज कर दिया तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो मैं डिपार्टमेंट से पूछ लेता हूं भाई आप क्या क्लासिफाई करोगे और क्या आप इसको वैल्यू लगाओगे, क्या रेट लगाओगे। तो मैं डिपार्टमेंट को, लेकिन तब तक मैं गुड्स तो कस्टम में नहीं रख सकता हूं, उसका डैमेज पड़ेगा, पेरिशेबल गुड्स खराब हो सकते हैं। मेरा कस्टमर बेचारा अभी तो इंतजार में है, दिवाली के बाद किसी ने ड्राई फ्रूट मंगाए हैं, अगर दिवाली निकल गई तो ड्राई फ्रूट वाला कहेगा भाई मैं क्या करूंगा इनका, अगले साल तक तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो कस्टम में था कि यू कैन अप्लाई फॉर अ प्रोविजनल असेसमेंट। आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करें, उसको बोलें कि एक प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड में आपको सबमिट कर रहा हूं और आप प्रोविजनल असेसमेंट के करके आप मेरे गुड्स को क्लियर कर दीजिए। जो ड्यूटी या वैल्यूएशन या ड्यूटी मेरे हिसाब से बनती है मैं जमा कर रहा हूं। जो डिफरेंशियल ड्यूटी होगी वो जब आप प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करेंगे तब मैं आपको वो ड्यूटी पे कर दूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो ये प्रोविजनल असेसमेंट का पीरियड का बड़ा रेलिवेंट था, क्योंकि मुझे अपने गुड्स कस्टम पोर्ट से छुड़ाने थे। जहां पर मेरा स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच का होता था, जिसके अंदर 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगा करते थे, वहां पर मेरी असेसमेंट्स प्रोविजनल होती थी। तो प्रोविजनल असेसमेंट का वहां पर भी पर्पस था। अब यहां मेरे पास क्या पर्पस है? अगर मैं प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाता हूं, वो लॉ बोलता है कि ऑफिसर जो है 90 दिन में तो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा और 90 दिन को कमिश्नर और बढ़ा सकता है, उसके बाद वो फाइनल करेगा। तो 90 दिन तक मैं क्या करूंगा? मैं वो ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, और अगर मैं एक रिटर्न नहीं भर सकता हूं तो मेरी अगली नहीं जा सकती है। तो टू माई माइंड प्रोविजनल असेसमेंट एक ऐसा प्रोविजन जीएसटी में आया है जिससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए। ये प्रोविजन जो है, जैसा एडवांस रूलिंग प्रोविजन है, ये ऐसा प्रोविजन है जो हमें फालतू में फंसा देगा। तो वी शुड रिमेन अवे फ्रॉम प्रोविजनल असेसमेंट। इस स्टेज में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो असेसमेंट की डेफिनेशन है जीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में, उसके अंदर रीअसेसमेंट को भी इंक्लूड किया गया। असेसमेंट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, रीअसेसमेंट, ऑल दैट। बट रीअसेसमेंट को कोई भी प्रोविजन असेसमेंट के चैप्टर में नहीं है, इसलिए वो रीअसेसमेंट हो सकता है बाद में आ जाए, कैसे आ जाए, बट आज की डेट में वी हैव टू काइंड ऑफ रेड इट डाउन। तो वो अभी इस प्रोविजन, इस लॉ में नहीं है। अब आते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स पर। आज की डेट में जो हम नोटिस देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ASMT 10, राइट रजत भाई? तो वो जो 10 में नोटिस आ रहा है वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से आ रहा है, क्योंकि वो रेंज से आ रहा है, वो वार्ड से आ रहा है। तो जब वो स्क्रूटनी करते हैं रिटर्न की, उसमें आपका 1 और 3B में डिफरेंस देखते हैं, कुछ ITC का डिफरेंस देखते हैं, उसमें वो जो नोटिस आ रहा है दैट इज कमिंग अंडर सेक्शन 61, वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की वजह से आ रहा है। वो एक नोटिस नहीं है, वो शोकोज नोटिस नहीं है जो आपका 73-74 में आता है।
तो स्क्रूटनी रिटर्न में अगर उनको कोई प्राइमा फेसी वो मिलती है, गलतियां मिलती है, तो उसके लिए वो आप नोटिस भेज सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक इंटीमेशन आया करती है इनकम टैक्स में अंडर 139(1) आई गेस। वो मुझे इनकम टैक्स बढ़े हुए बहुत साल हो गए। जब मैं 91 में क्वालिफाई किया था, उसके बाद से इनकम टैक्स एक्ट शायद मैंने ढंग से नहीं पढ़ा ही नहीं है। Was lucky enough to be विनोद गुप्ता जी फर्स्ट बैच। सिर्फ हम 9 स्टूडेंट थे जिनको विनोद गुप्ता जी ने पढ़ाया था 91 में, तो तब हमने पढ़ा था। और तो जैसे इंटीमेशन आती थी 143(1) या 130 कौन सा सेक्शन है, वैसा ही अगर आप मान लें ये स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का नोटिस है, तो इसमें प्राइमा फेसी स्क्रूटनी वो करता है। बेसिकली इट इज मोर ऑफ ए रिकंसिलेशन टाइप। रिकंसिलेशन करने के बाद वो आपको नोटिस देता है कि जी ये डिफरेंसेस निकल रहे हैं प्राइमा फेसी। ये जो डिफरेंस प्राइमा फेसी निकले हैं, इसके बेस पर अगर आपका डिफरेंस बनता है तो आप टैक्स जमा करा दीजिए। अगर आप टैक्स नहीं जमा कराते, आप उसको कंटेस्ट करते हैं, देन ही कैन रेफर यू फॉर ऑडिट और इंस्पेक्शन, और अदरवाइज he can then proceed for detailed investigation and issue you a show cause notice under 73 or 74। 73 कहने के लिए है, मुझे नहीं लगता डिपार्टमेंट 73 में इशू करता है, डिपार्टमेंट तो सीधा 74 की बात ही करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर अपना शो कॉज नोटिस रोकना है तो ASMT 10 को सीरियसली लेना जरूरी है। उसको आप रिकंसिलेशन लीजिए, रिकंसिलेशन के वक्त उसको इंफॉर्मेशन सबमिट करके यू कैन गेट इट स्टॉप देयर एंड देन। उसके बाद डिपार्टमेंट कब इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोई ऑडिट करेगा, तब तक हो सकता है आपका लिमिटेशन पीरियड रहे ना रहे, वो बात की बात है। तो जो ये छोटे छोटे नोटिस आ रहे हैं, इनको वहीं की वहीं खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए क्या टाइम लिमिट है? इसके लिए टाइम लिमिट है 3 साल की, जहां पर एनुअल रिटर्न जो है वो, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट है कि अगर आपने उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो क्या कर सकता है, वो नोटिस इशू कर सकता है। नोटिस इशू करेगा 73, 75 पे। तो जो टाइम लिमिट्स है वो 73 और 74 की सेक्शन 61 में इंप्लाइडली एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि जो भी रिजल्ट है उसके पास एक्शन 73, 74 का है, जहां 3 साल और 5 साल की लिमिट है। उसको मुझे 3 महीने का टाइम भी देना है जिसमें मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और एडजुडिकेशन का ऑर्डर भी हो सके। तो वर्चुअली लिमिट जो है वो 3 साल में 3 महीने कम और 5 साल में 3 महीने कम है। कहां से है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। आपने कब फाइल की उससे मतलब नहीं है, जो ड्यू डेट थी। तो इसलिए जब भी एनुअल रिटर्न फाइल की डेट एक्सटेंड हो रही थी हमारी 9(9)C की, डिपार्टमेंट के पास लिमिटेशन भी एक्सटेंड हो रहा था। तो ड्यू एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ 9(9)C was not always good. It was working against assessees also. तो ये हो गया हमारा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के बेस पर। उसके बाद आते हैं जी जो हमारा असेसमेंट होता है, जिसको आप कह सकते हैं असेसमेंट्स ऑफ नॉन फाइलर, जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, और या अनरजिस्टर्ड डीलर। इनको आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कह सकते हैं, एक्स पार्टी असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, एक्स पार्टी असेसमेंट है, वो किस केस में हो सकता है? अगर आप रजिस्टर्ड है और आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और आपने स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में ASMT 10 का नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकता। उसको उस ASMT 10 में जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर असेसमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो जो भी उसके पास मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसके ऊपर आपकी असेसमेंट कर सकता है। तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है या नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स के केस में हो सकती है या अनरजिस्टर्ड डीलर्स के केस में हो सकती है। तो वो दोनों जगह बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। लास्ट हमारी आती है समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट एक किस्म से रेजिडुअरी असेसमेंट है, जो पुराने उसमें कहीं पर कवर नहीं होती। उसके पास कोई भी एविडेंस आता है जहां पर उसको टैक्स इवेजन का उसकी नॉलेज में आता है, उसके बेस पर वो आपकी असेसमेंट फ्रेम कर सकता है। लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं की, वो असेसमेंट फ्रेम कर सकता है। पर आप अगर 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो असेसमेंट को क्वेश्चन करके एक प्रॉपर आपको नोटिस इशू करके या एग्जामिन करके आपको ऑर्डर इशू कर सकता है। तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स
best judgment assessment, summary assessments. All these assessments can be withdrawn if you give them information, if you file return and you file an application about it. तो ये हमारा मोटा मोटा असेसमेंट का प्रोविजंस है. अगेन हर प्रोसीडिंग की तरह इनमें भी अपनी ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना बड़ा जरूरी है. नाउ वी कम टू इन्वेस्टिगेशन. दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं और टाइम, अभी हमारा टाइम काफी हो गया है क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक हैं. तो मैंने बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो टिपिकल, जैसे अरेस्ट का प्रोविजन है. अरेस्ट एक ऐसा प्रोविजन है जिसके ऊपर हम बहुत घंटे तक चर्चा कर सकते हैं, उसको छोड़ दिया है. जो डिमांड एंड रिकवरी के 73, 74 में वो एक एक प्रोविजन एक ऐसा है जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है. उन प्रोविजंस को हमने अभी छोड़ा है. हमने क्या लिया है? हमने इंस्पेक्शन को लिया है, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर. हमने पावर टू सम्मन लिया है और हमने एक्सेस टू प्रमाइसिस लिया. तो 3 सेक्शंस को हमने कवर किया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 67 को हमने किया है, 70 को किया और 71 को किया, क्योंकि एक ही सेक्शन 67 यही ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर शायद रजत भाई पूरे दिन का वेबिनार करा सकते हैं. तो इंस्पेक्शन ही अगर आप ले, सेक्शन 67 में बोलता है a proper officer not before the rank of joint commissioner where he has reasons to believe. अब reasons to believe जो है यही एक ऐसा फ्रेज है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स है. तो unless he has a reason of belief, so he should have reason of belief. Reason to believe need not be communicated, but it has to be recorded in writing in file. तो उसको रीजंस टू बिलीव को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और अगर उसको रीजंस टू बिलीव है कि किसी टैक्सेबल पर्सन ने अपना टर्नओवर को सप्रेस किया है, उसने गुड्स जो उसके स्टॉक है उसको सप्रेस किया है, उसने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, या वो किसी एक्ट के रूल्स, एक्ट के प्रोविजन और रूल्स को कंट्रावेन कर रहा है विद इंटेंशन टू इवेड टैक्स, उस केस में वो इंस्पेक्शन को ऑर्डर कर सकता है. इसी तरह से किसी केस में ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के केस में या कहीं पर वेयर हाउस है, वेयर हाउस ओनर के केस में अगर कहीं पर उसको लगता है कि गुड्स ऐसे रखे हुए हैं या रिकॉर्ड इस तरह से लिखा है कि विच कुड रिजल्ट इनटू इवेजन, तो वो इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है. तो पहला था टैक्सेबल पर्सन के लिए, दूसरा था ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउसिंग के लिए. दोनों केसेस में इंस्पेक्शन को वो ऑर्डर कर सकता है. इंस्पेक्शन कैन हैपन ओनली ऑफ बिजनेस परमाइसेस. इंस्पेक्शन में वो घर नहीं आ सकते. तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोविजन जो इनकम टैक्स डील करते हैं, इट इज मोर लाइक ए सर्वे एज अगेंस्ट सर्च अंडर इनकम टैक्स. तो यहां पर वो इंस्पेक्शन पे आ सकते हैं आपके बिजनेस परमाइस पे, और टैक्सेबल पर्सन और ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस. तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती, अनरजिस्टर्ड पर्सन की यहां सर्च हो सकती है. तो वो इंस्पेक्शन करने आएंगे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं. रीजंस टू बिलीव उसको रिकॉर्ड करना होगा और बिजनेस प्रोमाइसेस की होगी. लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड करना पड़ेगा, विच इज ट्रू. लेकिन अगर रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड नहीं किए तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली जैसे बहुत सारे एडवांस्ड कंट्रीज है जहां ये प्रिंसिपल है कि अगर आपका मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड इलीगल था तो उसके बेस पर आपने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया उसको आप यूज नहीं कर सकते. हिंदुस्तान में ऐसा प्रोविजन नहीं है. हमारे यहाँ जो जजमेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड नहीं भी किए और वो सर्च या इंस्पेक्शन वाज इलीगल, स्टिल डिपार्टमेंट इज अलाउड टू यूज दैट मटेरियल एंड रेज डिमांड अगेंस्ट द टैक्स पेयर. तो while we can keep harping about reasons to believe should be there and must be recorded, it is kind of a check on the officers, but it does not give me any protection whatsoever. तो
कल को किसी क्लाइंट के आपके इंस्पेक्शन के आए और आप बोलो जी रीजन टू बिलीव मुझे बताओ वरना तो मैं आपको घुसने नहीं दूंगा, तो ऐसी गलती मत करिएगा, बिकॉज कोर्ट्स हैव नॉट स्टूड विद द एसएससी ऑन पर्टिकुलर दीज पॉइंट्स। अब इसी तरह से आता है सर्च की जो प्रोविजन है। सर्च के प्रोविजन है कि जहां पर ऐसी सिचुएशन है जहां उनको सर्वे के बेस पर या किसी और मटेरियल के बेस पर उनको ये लगता है कि देयर आर सर्टेन गुड्स, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, सर्टेन रिकॉर्ड्स, सर्टेन थिंग्स, गुड्स which are liable to be confiscated, or these documents, things, record which are secreted at one place, then any officer not below the rank of joint commissioner, he can order a search. अब आप यहां पर भी बात कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेटेड। सीक्रेटेड का नेचुरल मीनिंग है कहीं छुपा रखें, तो इसका मतलब यह है कि भाई मेरे जो वॉचर हैं जो मेरे फाइल में लगे होने चाहिए थे ऑफिस में, वो फाइल में ही लगे हुए हैं, तो भाई सीक्रेटेड तो नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्टली सेक्शन 67 की प्रोविजन को पढ़ें तो डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं चीजों को सीज कर सकता है विच आर सीक्रेटेड, और जो सीक्रेटेड है सिर्फ उनको ढूंढने के लिए सर्च कर सकता है। बट हम प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं, जो उनको मिलता है बांध के ले जाते हैं। तो वी हैव दीज प्रोविजंस इन द एक्ट। हो सकता है कभी कोई ऐसा जूरिस्प्रूडेंस हिंदुस्तान में डेवलप हो जाए जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रोटेक्शन मिलने लगे, लेकिन जो पास्ट के जजमेंट्स हैं उनसे हमें अभी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। सो वी हैव टू गो ऑन द बेसिस कि ठीक है डिपार्टमेंट के जो पावर है उसके बाद वी विल कोऑपरेट एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू डिपार्टमेंट रादर देन फाइटिंग ऑन दीज ग्राउंड्स, rather we fight on the substance and merit of our case, even though these provisions have been incorporated in the act. तो अब आगे चलते हैं। तो जो प्रोविजन है उसके हिसाब से ऑफिसर्स जो सर्च पर आया है वो किसी बॉक्स को, किसी ड्रॉर को, किसी अलमारी को, किसी कमरे को, अगर आप उसको चाबी नहीं देंगे तो उसको तोड़ सकता है, खोल सकता है। ही हैज दैट काइंड ऑफ पावर। जिसकी कस्टडी में उसको गुड्स मिले हैं वो गुड्स को सीज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को सीज करके ले जा सकता है। गुड्स को अगर प्रैक्टिकली सीज नहीं कर सकता तो वो वहीं कह सकता है भाई साहब आप ही की कस्टडी में छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने इनको के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, आपने इनको बेचना नहीं है, आपने इनका कोई वो नहीं करना है। अगर आपके ऐसे गुड्स हैं जो पेरिशेबल है और आपको इनको बेचना चाहिए तो यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम मी। सो इस तरह की प्रोविजंस 67 में इनकॉर्पोरेटेड है। गुड्स जो सीज किए गए हैं अगर उसके बारे में आपको कोई शोकोज नोटिस वो 6 महीने के अंदर अंदर इशू नहीं करते हैं तो उनको वो गुड्स को रिलीज करना पड़ेगा। उससे पहले आप रिलीज कराना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई, गिव देम ए सिक्योरिटी ऑफ द अमाउंट दैट ऑफिसर वांट्स, और यू कैन पे एंटायर टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड गेट्स योर गुड्स रिलीज्ड। वरना 6 महीने में वो रिलीज करेगा। 6 महीने का पीरियड फर्दर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। 1 साल से बियॉन्ड ही कैनॉट रिटेन योर गुड्स। सो अगर आपके गुड्स को 10 महीने हो गए तो उसके बाद सिक्योरिटी या टैक्स देके छुड़वाने की जरूरत नहीं है, 2 महीने में वो वैसे ही छूट जाएंगे। सर्च के बाद देन नेचुरली सर्च विल रिजल्ट इनटू examination of all the documents, all those things which have been resumed. Search can take place of any premises. It has to be in presence of at least 2 witnesses. सर्च में एक पंचनामा बनाना उनको डॉक्यूमेंट्स का जरूरी है। पंचनामा बनाने के बाद दे हैव टू गिव यू अ कॉपी ऑफ द पंचनामा, और जो डॉक्यूमेंट्स थिंग्स वो आप सीज करके ले जा रहे हैं यू कैन आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ दैट। ये कॉपी आप मांग सकते हैं। ये एक प्रोविजन ऐसा है जो सर्विस टैक्स और एक्साइज से डिफरेंट है। सर्विस टैक्स और एक्साइज में आप कॉपी नहीं मांग सकते थे, वो देते नहीं थे। इनकम टैक्स में आपको कॉपी मिला करती थी, बट यहां पर उन्होंने अलाउ किया है। बट अगेन इट इज सब्जेक्ट टू प्रॉपर ऑफिसर। इफ ही बिलीव्स दैट गिविंग एनी कॉपी और गिविंग एनी एक्सट्रैक्ट कैन हैम्पर हिज इन्वेस्टिगेशन, ही कैन डिनाई दैट कॉपी। तो मैं क्या समझता हूँ 100 एप्लीकेशन जाएंगी, 100 की 100 कहेगा भैया कौन कराएगा, बोल दो कि in my view it can hamper. So this is what I believe is probably would happen. But you can again challenge to the court
कि सर ये तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये नहीं देगा तो मैं इसका रिप्लाई कैसे बनाऊंगा। तो ऑल दैट थिंग्स हैपन। अगर उसके बाद वो जब शोकॉज नोटिस इशू करता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करता है, जिसको रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, RUD बनता है वो, उसकी कॉपी शोकॉज के साथ मिलती है। जो डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स, अदर चीजें उसने रिकॉर्ड नहीं, रिलाई नहीं की शोकॉज में, उसको शोकॉज के विद इन 30 days दे आर बाउंड टू रिटर्न इट बैक टू यू। तो जो रिलाइड अपॉन किया है वो आपको शोकॉज के साथ मिलेगा, जो रिलाइड अपॉन नहीं किया है वो आपको 30 days के अंदर उनको वैसे ही वापस करना। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट सर्च। सर्च में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर मोर ऑफ स्ट्रेटेजी। क्यों आपको क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा जब भी सर्च होगी कि सर्च में वो आपको अलाउ नहीं कर सकते, और मैं आपको ये कहूंगा कि सर्च में आपको जाना ही नहीं चाहिए। हम बहुत बार सर्च में क्या करते हैं, डायरेक्टर नहीं आता है, नीचे का ऑफिसर होता है। सर्च में बहुत बार लोग ये कह सकते हैं साहब मेरे को जो डिपार्टमेंट ने धमका बुला के लिखवा लिया, मेरे को मारा, मेरे को पीटा, मेरे ऊपर फिजिकल कोर्शन किया, मेरे को मेंटली टॉर्चर किया, और उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखवा ली। अगर रजत भाई वहां पर होंगे और स्टेटमेंट में रजत के साइन उन्होंने करा लिए एज विटनेस, तो फिर कैसे हम कोर्शन बोल पाएंगे? रजत को थोड़ी वो मेंटली टॉर्चर कर सकते थे। सो इफ ए काउंसिल इज प्रेजेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टुमारो टू रिट्रैक्ट दैट स्टेटमेंट। कई बार एक डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर को वो इलीगली डिटेन कर लेते हैं, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक बिठा के रखते हैं, उसको फोर्स करते हैं टैक्स जमा कराने के लिए। डायरेक्टर आता नहीं है, एम्प्लॉइज बैठते हैं, वो कहते हैं जी हमारे को डायरेक्टर का फोन ही नहीं मिल रहा। कंपनी में जो ऑफिशियली डायरेक्टर है वो एक ड्राइवर है, एक चपरासी है। डिपार्टमेंट भी समझता है इनको अरेस्ट करके क्या करूंगा। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल वहां पर बैठा हुआ है, अगर गलती से मैं या रजत भाई पहुंच गए और उन्होंने हमें रोक लिया, तो फिर तो मालिकों को आना पड़ेगा ना। इसका मतलब हमें नहीं फंसना है, हम बाहर रहेंगे तभी तो उसे बचाएंगे। हम ही वहीं फंस गए तो कौन बचाएगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नॉट टू गो एट द सर्च प्रोसीडिंग्स। हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रोसीडिंग में हम जा सकते हैं और किस प्रोसीडिंग में हम नहीं जा सकते। इट इज ए मोर ऑफ ए स्ट्रेटजी। सर्च की टीम के इसको कभी भी ऑफेंड नहीं करना। वो आपके आए हैं, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, आप उनको ऑफिशियल ड्यूटी करने दीजिए। उनको चाय पानी खाना वगैरह वो आजकल डिपार्टमेंट अपना इंतजाम करके आता है, बट एज ए कर्टसी यू शुड ऑफर देम बिकॉज दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। देयर इज नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू। अगर आप प्यार मोहब्बत से उनसे ट्रीट करेंगे तो हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन हो जाए। उसके बाद बहुत सारी चीजें सर्च में हो जाती हैं एट द पॉइंट इन टाइम, ठीक है, क्योंकि उसी टीम के साथ आपको सारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग करनी है शोकॉज के टाइम तक। तो इट इज बेटर यू ट्रीट देम नाइसली, यू ऑफर देम फूड, यू ऑफर देम स्पेस, जो उनके क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। आप ये कह सकते हैं किसी चीज के बारे में कि मुझे नहीं पता है, आप ये कह सकते हैं कि मुझे याद नहीं है, मैं रिकॉर्ड को चेक करके बताऊंगा। आप ये कह सकते हैं कि ये चीज मैं नहीं देखता, मेरा जूनियर देखता है और वो आज नहीं है। आपको हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसी सवाल का गलत जवाब मत दीजिए। डिपार्टमेंट को घुमाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल में फंस जाए। जितना आप उनको ऑफेंड करेंगे वो आपसे ज्यादा पावर में है, वो आपको और ज्यादा ऑफेंड करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू डील विद सर्च पार्टी। तो सर्च में इस चीज का जवाब ध्यान रखना है। जो भी वो पंचनामा बनाएंगे, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उसको वहां पर टैग करेंगे, उसको सीरियल नंबर करेंगे, उसके ऊपर सील लगाएंगे और एक पंचनामा की कॉपी आपको देके जाएंगे। जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे उसकी कॉपी वो आपको नहीं देंगे। ऑल दो स्टेटमेंट्स विल कम टू यू एज पार्ट ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है। ये अलग बात है कि कई बार वो आप ही के कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो डिलीट करते करते आप एक कॉपी सेव कर लेते हो, वो अलग बात है। दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ योर पीपल, ओके। वो भी जब वो ना देख रहे हो, और यू कैन गेट फ्रेंडली विद देम, बट ऑफिशियली दे विल नॉट गिव यू। तो ये कुछ चीजें हैं जो सर्च के वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए।
और तो सर्च होगी, जो शुरू हुआ है वो ख़त्म भी होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलेगी, शोकोज होगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट जो है वो 10% से ज़्यादा कभी-कभी जाता है। तो डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट दैट मूव्स बिटवीन 7 to 11%। तो 85 to 90% केसेस में डिपार्टमेंट अल्टीमेटली ट्राइब्यूनल तक हार जाता है। तो जो भी शोकोज बनता है, जो भी इवन प्री डिपॉजिट जाता है, वो भी बहुत बार वापस आ जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट आपको बोलता है वॉलंटरी पे करें। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि वॉलंटरी पेमेंट जो है हाउ इट कैन बी अंडर 74। सो इसके ऊपर बहुत सारे झगड़े हैं। डिपार्टमेंट से आप उस वक्त नहीं लड़ सकते, वो बोल रहा है 74 में, हाँ सर 74 में। वी कैन ऑलवेज रिट्रैक्ट दैट, वी कैन ऑलवेज आर्गू at adjudication that it was under coercion or it is not my truthful statement, I want to make a new statement। तो जरूरी नहीं है कि सारी लड़ाई उसी दिन जीतनी है। जिस दिन वहां पर वो 25 आदमी आए हुए हैं, साथ में 5 आदमी पुलिस के हैं, देयर इज नो नीड फॉर अस टू पिक अप ए फाइट देयर। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना हमारे को सर्च के केस में बड़ा जरूरी है। इसके बाद 2 छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, पावर टू समन एंड पावर एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। जितने भी जीएसटी के ऑफिसर्स हैं, सुप्रिटेंडेंट एंड अबव, दे हैव पावर ऑफ सिविल कोड, तो दे कैन समन एनीबॉडी टू अपीयर बिफोर देम, टू गिव एविडेंस, टू मेक ए स्टेटमेंट, टू गिव डॉक्यूमेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोसीडिंग आप ही के केस में हो रही हो, आपके केस में वो धीरूभाई रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट आपको देने को कह सकते हैं। सो इफ देयर इज ए समन जनरली स्पेसिफाई कि आपको इन पर्सन आ रहा है, और यू कैन कम थ्रू एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। सो यू हैव टू रीड समन वेरी केयरफुली, उसमें इन पर्सन लिखा है या एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव लिखा है। अगर इन पर्सन भी लिखा है और डायरेक्टर के नाम समन है, तो आप उनको लेटर दे सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ सर्कुलर बाय बोर्ड ऑल्सो कि डिपार्टमेंट और डायरेक्टर्स को, एमडीज को, सीनियर ऑफिसर्स को समन नहीं दिया जाना चाहिए अनलेस दे आर पर्सनली इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन। तो डायरेक्टर के खिलाफ पर्सनल समन है तो भी आप एक लेटर दे सकते हैं कि दिस डायरेक्टर इज नॉट इन्वॉल्वड इन डे टू डे फंक्शनिंग, ही डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ द अफेयर्स एंड ही द कंपनी हैज ऑथराइज्ड दिस एंड दिस पर्सन who will give the statement and that statement will be binding on the company. So we request you to issue summon in favor of this person as against our director। ये आप लेटर दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो डायरेक्टर को बुलाना चाहे, then director will have to, okay, but initially nothing stops you from giving such a letter। उसके बाद आपकी दोस्ती है। एक्सेस टू बिजनेस प्रोमाइसेस, अगर सर्च नहीं है, सर्वे नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी अंडर 70 सेक्शन 71 ऑन ऑथराइजेशन ऑफ ए कमिश्नर दे हैव पावर टू एक्सेस योर बिजनेस प्रोमाइस। वो ऑडिट के लिए आपके बिजनेस प्रोमाइस पे आ सकते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, और किसी चीज के लिए भी आ सकते हैं। वो आपके यहाँ आ सकते हैं और आपके बुक्स, रिकॉर्ड्स, आपके ट्रायल बैलेंस, आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उन सबको एग्जामिन कर सकते हैं। तो दैट इज वेल विद इन देयर पावर, विद देयर ऑथराइजेशन, और वो आपको इंस्पेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस को। इवन इफ इट इज नॉट एन इंस्पेक्शन और सच, स्टिल दे कैन एक्सेस योर बिजनेस प्रोमाइस। तो ये जो था आज मैंने अपनी स्पीड से बहुत जल्दी किया, उसके बावजूद भी आई थिंक आई ओवररन माय टाइम, but these are vast topics and these proceedings are very far reaching, so we must understand all this. But thank you so much, sir, for making us understand the law in a practical manner and giving us all the capsules. So we had a lot of questions, but I think you have covered a lot of them. So I'll ask a couple of questions which are remaining, just 5 minutes more, and then we'll be closing down the session. Sure. 2-3 questions. First of all, in case of advance ruling, there is a time limit for 90 days of giving an advance ruling, but we see state of Punjab, state of Delhi, there are no rulings coming even for last 6 months or 7 months. What is the next course of action? No course of action. तो क्या था, अगर आप देखें सर, एडवांस रूलिंग जो मैंने कहा, जो जस्टिस कादरी चेयर किया करते थे, इनकम टैक्स में थी, कस्टम में थी, सर्विस टैक्स में थी,
उसमें 6 महीने तक तो एडमिशन की हियरिंग नहीं होती थी, क्योंकि एडवांस रूलिंग का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। तो पहले तो ये हियरिंग करनी पड़ती है कि वेदर दैट प्रोसीडिंग कैन बी कवर्ड बाय एडवांस रूलिंग। तो पहले वो प्रोसीडिंग होती थी, उसमें एडमिट होने के बाद वो मेरिट के ऊपर हियरिंग होती थी। तो 6-6 महीने तक तो वो प्रोसीडिंग ही नहीं होती थी। तो कोर्ट्स ने बहुत बार बोला है कि एनी टाइम लिमिट विच इज इम्पोज्ड ऑन ए कोर्ट और ए ट्राइब्यूनल और सच अथॉरिटी is directory, advisory in nature and not mandatory. So there are number of judgments of various courts, Supreme Court, High Court, जहां उन्होंने कहा है कि these are recommendatory, these are advisory and not mandatory. तो आप ये नहीं कह सकते ये अथॉरिटी ने डिसाइड नहीं किया तो मेरा तो हो गया, I presumed it to be done. That is not the case. So can we file an appeal in appellate against this if they have not passed an order in 90 days? ओके सर, ये ना एक बड़ा अपीलेट में आपके पास कोई अपीलेबल ऑर्डर ही नहीं है। अगर आपके पास एक अपीलेबल ऑर्डर होगा तो ही तो आप अपील में जाओगे। दूसरा, एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के बाद लेट्स से आप अपीलेट के ऑर्डर में चले गए, अपीलेट के ऑर्डर के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एडवांस रूलिंग इज सो वेरी डेंजरस। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिन्होंने कहा है कि वी डू नॉट हैव एन अपील जुरिसडिक्शन ओवर ऑर्डर बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, वी हैव ए जुडिशियल रिव्यू। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? दे कैन रिव्यू द प्रोसेस, उन्होंने आपको हियर किया या नहीं किया, उन्होंने आपकी बात सुनी, आपके इश्यूज को कंसीडर किया या नहीं किया, बट दे कैन नॉट गो टू मेरिट ऑफ द केस। तो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पर गए, नेगेटिव ऑर्डर आया, आप अपीलेट में गए, नेगेटिव ऑर्डर आया, डन, नो रेमेडी। हाई कोर्ट में अपील जुरिसडिक्शन तो थी, आज आपके पास कमिश्नर अपील का ऑर्डर आता है, ट्राइब्यूनल फंक्शन नहीं कर सकता है, तो यू कैन गो टू अपील हाई कोर्ट एंड चैलेंज द मेरिट ऑफ द ऑर्डर। इन दैट केस हाई कोर्ट हैज एन अपील जुरिसडिक्शन, हियर दे हैव ओनली जुडिशियल रिव्यू, नॉट अपील रिव्यू। तो मैंने तो अभी तक ये भी पता नहीं किया कि दिल्ली में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बैठती कहां है। आई एम फ्रॉम वेरी डे वन आई एम सो अगेंस्ट। जब भी प्रोविजन बना था मैंने कहा ये क्या बनाया इन लोगों ने, देयर इज नो नीड, देयर इज नो बेनिफिट, और यही अब उन्होंने कस्टम में किया है। नाउ दे हैव रिमूव दिस, कस्टम में कमिश्नर लेवल ऑफिसर, मैं क्या करूंगा उस एडवांस रूलिंग का? तो राइट सर, राइट सर, दिल्ली आईटीओ स्टेट वैट में बैठती अथॉरिटी। सर मेरे को क्या करना है, मैंने वो नहीं जानना है, आई डोंट, मेरे को कोई क्लाइंट बोलेगा मैं तो नहीं जाऊंगा। Right, sir. Sir, next question we'll ask. Sir, the question is primarily related to scrutinies, assessments, or investigation. Anything. The person asks, कि if a tax officer is asking us records that we already have, for example, our reports, our audits, we can produce that. What if he asks us something new to prepare, which we don't have? Is it our responsibility to prepare those documents and give it to him? Like what document? For example, he asked me to give an entire list of phone numbers used by my employee, punching in the name of the employee, punching in against all the 12 bills in a year that I have received. I don't have this kind of sheet comparative chart prepared for telephone bills or electricity bills. But do I have to prepare all this? Okay. Now the question is, this information is available in your books of records. Yes. ठीक है, he is only asking you to put together in a tabular form, in a particular tabular, in a particular format, that's all. Okay, now you can say okay, I will not give it to you. Okay, now what will happen? वो बोलेगा कि आप सारे रिकॉर्ड दे दो मेरे को, आप टेलीफोन बिल की कॉपी देने से तो नहीं मना कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। then he will prepare a summary on basis of on his own, वो अपने किसी क्लर्क को लगाएगा, कहेगा भैया इनका सबका वो कर दो, वो बना दो, और उसके बाद वो जो एक्सेल बनाएगा उस एक्सेल में फार्मूला डिफेक्ट आएगा और फीट का मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर का भी मीटर हो जाता है, और फिर जो शोकोज आता है आप कहते हो यार इतना तो मैंने खर्चा बुक नहीं किया था जितने की डिमांड रेज कर दी। आई हैव सीन इन केस ऑफ एक्साइज
जो फुट में माल रिलीज हुआ उसका उन्होंने मीटर बना दिया और मीटर के बेस पे डिमांड कर दी, तो 3 गुना तो ऑटोमेटिकली हो गई। बाद में कहते हो वो देयर वाज अ क्लरिकल एरर, तब तक तो आप बहुत आगे जा चुके हो। तो इट इज बेटर टू गिव इंफॉर्मेशन द वे ही वांट्स, क्योंकि अगर उसको किसी तरीके से चाहिए तो चाहिए, अनलेस इट रिक्वायर कि आपको कोई ऐसी चीज मांग रहा है जिसके लिए आपको एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, you do not believe that is feasible. But in my view, I always believe we should help him to help us. Okay. अगर हम उसको हेल्प नहीं करेंगे तो वो हमें हेल्प नहीं कर सकता, अगर वो चाहेगा तो भी। So, but जैसे एक नोटिस के अंदर what he asked, he said कि divide it into whether it is input services or capital goods, and against that right, whether it is shown in your 2A or not. Invoice wise so there are 5 lakh invoices in the entire financial year. He says हर invoice के against आप yes no लिख के दो. We already have prepared 2A in our own format invoice wise, but he says नहीं, इस format में दो मुझे. तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप सैंपल बेसिस पे कर लें, आपको मटेरियलिटी लिमिट फिक्स कर लें कि आप जिसमें मे बी आपका 50%, 60%, 80% रेवेन्यू कवर हो जाए, बट यू कैन रिक्वेस्ट हिम टू आस्क ऑन अ सैंपल बेसिस। उसको बोलो सर मैं 10 लाख से ऊपर के सारे बिल दे देता हूँ, बाकी में से आप चुन के बता दीजिए। Right. That you can request it. So we still have a lot of questions, but anyone in the participants has some questions, you can open your mic and ask. This is Priyanka. Yeah, sir, Priyanka. Sir, what I have experienced is there was in this notice in ASMT 10 with respect to mismatch in GSTR 3B and GSTR 1 for a particular financial year. Okay. And we submitted our reply also through online with respect to this notice. But however, when we visited, because he did not close that notice, he is asking us to give a entire reconciliation of 2A and 2 also. So what is the course of action available to us in that case? See, what you should do, because as I explained, all submissions or all these things should protect you against future investigation, that you have already done that with the department once. So you can always requesting, sir, we have no problem in giving it, but my client would like to see a communication from you. वो बोल रहा है जी आप डिपार्टमेंट तो मांग नहीं रहा है, आप ही खुद से मांग रहे हो, तो सर मुझे कुछ आप कम्युनिकेशन दे दीजिए, and so that I can show it to client and he gives me information. Okay. Thank you, sir. We can always piggy bank on the shoulder of clients कि सर मैं तो देने को तैयार हूँ, सर वो क्लाइंट कहाँ समझते हैं, उसके कोई और कंसल्टेंट है, उनके कंसल्टेंट है कमल अग्रवाल जी, वो उनको भड़काते रहते हैं, रजत जी तो बहुत अच्छे हैं. So you have to politely play like that. See, we can't take fight with him. Okay, but Perfect. You should not respond unless he gives you in writing. Okay. Right. So anyone has any other questions? Otherwise, we'll formally close. Hello, sir. Sorry. Hello, sir. This is Gaurav. Yeah, Sir, Gaurav. when we go for notices, we face many practical difficulties that they do not accept documents, or they are not ready to give receiving or proofs that they have accepted the documents. As you said, it is very important to keep that we have submitted. But practically, especially in the state departments, it is like next to impossible to get receivings or proofs that we have submitted. So how do we tackle that? See, now you reply mostly things online. Right. So there is no need for a physical reply. Once you have given online, that is deemed to be submitted. Then what happens if you go to a state department, like say, or any department where you are physically required to submit document, then if the concern range or ward is not accepting, there is always a centralized receiving department within that office. So you can try there if he receives it. जैसे अगर आप सर्विस टैक्स में जाएंगे बीकाजी में, तो नीचे एक बना हुआ है जहां पर आप सबका सबमिट कर सकते हैं. Right. अगर वहां पर भी नहीं होता है, then the best course is you come back, write a letter since the documents could not be submitted. Do not say you are refused to accept. The documents could not be submitted
at the office, we are sending you by this, and send by speed post. Do not use courier, use speed post, and keep the tracking and the envelope with you. All right, sir. Definitely. Sir, and like when generally in the letters they ask for 30 documents. So is it advisable to, in the case of audits or assessment, they ask for 25, 30 documents. Is it advisable to give them everything in a single shot, or we shall like phase it out? What shall be the right procedurally? What shall we do? See, what you should do, there are certain documents which are readily available with you, like balance sheet, tie returns copies. Okay, that you should give immediately. Within 15 days, that at least that document you should give. Remaining documents which are more copies of ledger, which require you to take time, then you can say, okay, remaining documents we are giving you. So that's how you should give documents in phases. Perfect, sir. Thank you, sir. So anyone else will take the last question, and then we should. Dharak Sanghvi, Bharat. I think. Dharak Khaled, let's take the last query from Dharak. Good evening, sir. Good evening, Dharak. First of all, thank you to understand the complex procedure in such a easy manner. Sir, I have one question. In COVID times, we were receiving several emails from the department respect to 2A versus 3B notice. It's just an email notice without any DIN or any reference number, and signed by Assistant Commissioner. Time to time replied that, but without considering our request, one or few months back they have issued a show cause notice under section 73, 4 and 5. So this show cause notice is valid, and what is the course of action which we need to adopt? Okay. Now, without DIN is generally used by central officer only. DIN is not used by state officers. That is point number 1. Okay. Okay. If it is a email communication, and somebody asked me about SMS communications also. So email communications are valid these days. If it is coming from central officer, it will have DIN. If it doesn't have DIN, you can reply it back and say, sir, this email communication is without DIN. Kindly issue it with DIN so that I can take it to the client for giving a reply. So that you can always do. In case of state, they do not know anything about DIN, so you will not have DIN. Let's come to next part of your question. Like even after receiving your reply, they have issued you a notice. So apparently they are not satisfied with your reply. They issued you a notice. Now you have to go and reply to that show cause notice, appear for personal hearing, and get it concluded. Okay. Thank you, sir. Thank you. Anything else? No, sir. Thank you so much for your time, sir. We thoroughly enjoyed the session. We wrote down a lot of points. We'll keep on calling you for the unsolved issues, and we'll plan the other session also for 73, 74. Yeah, I think that's very important. Those, and then maybe once the appellate proceedings also starts, because all of these are interlinked. One has to keep in mind, because I was also going to those provisions in between. Sure. This is all one thread only. But no worries, sir. The time was also very limited. We had 60 minutes. Now we are down to, I suppose, 19 minutes. So let's see, sir. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. Thank you, Rajat. Thank you.